Xiao Bank is a place that attracts the best professionals in the financial industry, and I am proud to be here at this event. As a guest at the Xiao Bank Anniversary Summit, I am delighted to participate in this event, which promises to be both informative and inspiring. Let's immerse ourselves in this atmosphere. For me, the Xiao Bank Anniversary Summit is the pinnacle of financial events. I am very impressed and thrilled to be a part of this event. Dear participants and esteemed guests, welcome to the Xiao Bank Anniversary Summit, dedicated to celebrating our bank's milestone. This is a special event that reflects not only our achievements, but also our commitment to continuous development and innovation. Throughout this conference, we will delve into the world of finance, investments, and business. So let's embark on this exciting journey together, full of opportunities and promising prospects. Welcome to the Xiao Bank Anniversary Summit. First and foremost, I would like to invite the founder of Xiao Bank, Yang Xiao, to the stage. Ladies and gentlemen, esteemed partners and dear guests, today we have gathered not just to mark an anniversary, but to celebrate a journey of innovation, resilience, and unwavering dedication to our cause. Our success is attributed to each of our employees and all those who believe in our mission. To our partners, you represent trust and shared ambitions. Together, we will continue to shape the financial landscape, embrace change, and create value for future generations. Today, as I stand before you, I contemplate the complex world of bonds. Bonds, like relationships, require trust, commitment, and a shared vision. Just as Xiao Bank stands firmly on its principles, bonds form the foundation of stability in the financial world. At Xiao Bank, we aim for every step we take to be based on ethics, legality, and dedication to the interests of our clients. Let us remember that legality is not just a constraint, but a compass that guides us toward an honest and successful future. Xiao Bank was established on September 28, 2022. In October, we introduced bonds with a 0.2% daily yield and a 3-year maturity. In May 2023,
Shell Bank relocated its financial operations to the United Kingdom, as recommended by the Hong Kong Monetary Authority. Yang Shao contributed nearly £1 billion to the British Exchequer. We plan to issue physical cards for our clients worldwide, install crypto ATMs with Shao software. All of this is aimed at creating a more comfortable environment for our clients. Let us build the future of the financial industry together. Thank you for your support and belief in us. Now, let's move on to the question and answer session. VIP guests, please prepare your questions for the leaders of Shao Bank. Will Shao Bank be opening branches in other countries? If so, how soon can this happen? Thank you. Yes, this year we are opening several Shao Bank branches. We want to test their operation over the next few months. And our plan for 2024 and 2025 is to open bank branches in 50 countries worldwide, with more to come. Will it be possible to use Shao Bank cards for online payments and transfers to cards from other banks by number? Yes, this feature is already available. The issuance of a physical Shao Bank card costs 5,000 Hong Kong dollars, and the monthly maintenance fee is 1,000 Hong Kong dollars. Virtual cards are issued for free and do not have a monthly maintenance fee. Currently, this feature is available for residents of some countries, but we are actively working to expand this service. Our plan for the next 5 years includes extending UnionPay support to 40 countries worldwide. How much investment was attracted in the past 3 months from the sale of AA 5190 bonds with a 16.5% yield? In the past 3 months, we attracted 2.4 billion HKD from the sale of these bonds. Indeed, this bond series has broken all records. We are looking to the future and have already received new investment projects from companies. We have a clear plan to issue new bonds up to 2030. How many new series of bonds will Shao Bank release? Shao Bank continuously receives investment projects from our partner companies. In addition, we receive proposals from organizations outside our ecosystem. Therefore, Shao Bank plans to issue many new bond series with different prices and yields to finance various business projects. Our business model is in high demand, and with the bank's growing popularity, we expect even more investment opportunities. I have a question about the legal activities of Shao Bank worldwide. Can you explain the basis of this and how it will be sustainable for the bank's future operations in different countries? Thank you for your questions. I'll take these questions and reply you in English. Over the past year, we have fully refined this area, and Shao Bank now is fully compliant with the principle of international legal activities. We would like to thank the representative of the Monetary Authority of Hong Kong for the continuous counseling of our legal department. Shao Bank is licensed to conduct banking and bond trading in the United Kingdom, which makes everything the bank does legal. For example, if you live in the United States, you can legally purchase our bonds and pay taxes according to your country tax law.
when converting cryptocurrencies into legal tender. The bank will provide safe and compliant financial services to its customers in accordance with the law. Thank you. Why does Xiao Bank use cryptocurrency as a method of payment for topping up and withdrawing funds from the Xiao card instead of using bank cards? It's a very important issue. We choose cryptocurrency as a payment method because it is legal and helps reduce fees and taxes. Our main goal is to provide our clients with the highest possible return on their bonds. This is why we decided not to use bank cards, as fees and taxes can be as high as 20% of the bank's turnover when using bank cards. We do not want to keep such a large percentage of our investor income. Thank you. Thank you for joining us at the event today. We are pleased to announce the completion of the Xiao Bank Anniversary Summit. सो हेलो एवरीवन। मेरी वॉइस नहीं ऑडिबल थी, किसी ने बताया अभी। तो अभी जो ये वीडियो हम देख रहे थे शाओ बैंक की एनिवर्सरी समिट,
तो ये एनिवर्सरी समिट जो हुई थी अभी शाओ बैंक की, इसमें इन्होंने बेसिकली क्या है कि जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो शेयर किए हैं। लाइक सबसे मेन क्वेश्चन जो है कि व्हाई शाओमिंग इज एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसीज। तो ये सोचने वाली बात है, और एक पर्सन ने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि क्रिप्टो करेंसीज क्यों एक्सेप्ट कर रही है शाओमिंग। तो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है, अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं होता तो आपके बैंक कार्ड से जो पेमेंट होनी थी उसमें इशू होता है ट्रांजेक्शन का, चार्जेस का, ट्रांजेक्शन चार्जेस। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सिंपल थिंग। जब आप अपने कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करोगे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब वो चार्जेस जो हैं, तो इंटरनेशनल चार्जेस से आपको बचाने के लिए ये शाओ बैंक ने जो है क्रिप्टो करेंसीज को भी इसमें अवेल किया। अब करने को तो डायरेक्ट कार्ड पेमेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकती थी बैंक, बट उसमें बहुत सारी मतलब लीगल इश्यूज आते हैं। लाइक बैंक को भी डाटा शेयर करना पड़ता, आपको भी जो इन्वेस्टमेंट जो करनी थी उसमें भी आप सोचते समझते हैं। अभी भी देखो क्या होता है, अभी भी लोगों को ये टेंशन हो जाती है कि जब उसमें से रिटर्न जो आ रही है, रिटर्न अगर हाई आएगी तो हम उसका आईटीआर कैसे देंगे, हम उसमें बैंक में डिटेल कैसे देंगे। सो ये सारी चीजें हमें भी डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, हमें भी लगता है कि हाउ वी कैन मैनेज आवर थिंग्स ना, कि ये अगर रिटर्न अच्छी दे रहे हैं यहाँ पे शाओ बैंक वाले, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिटर्न देंगे, तो हम अगर अपने पैसों को डबल कर रहे हैं, ठीक है, 6-6 महीने में, 5-5 महीने में, तो उसका रिपोर्ट जो बनेगी वो रिपोर्ट हम कैसे अपने बैंक के साथ शेयर करेंगे, अपने गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए ना क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी चीज है। क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इजिली अपना जो डाटा है वो बचा सकते हो। लाइक अगर आप $10,000 कमा रहे हो तो $10,000 को टोटली वहां पे हाइड करके आप रख सकते हो कि मेरी अर्निंग जो है वहां पे, मतलब प्रॉपर आप नहीं शो कर सकते वहां पे। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने का मेन रीजन यही है शाओ बैंक में। और बाकी इसमें और भी क्वेश्चंस हुए कि क्या शाओ बैंक आने वाले टाइम में अपनी जो कार्ड है इनका, जो ये वर्चुअल कार्ड हमें मिलता है यहाँ पे, इस कार्ड का और कोई ऑप्शन लेके आएगी, और कोई ऑप्शन लाइक ये यूजेबल होंगे और चीजों के। तो बिल्कुल उसके लिए भी शाओ बैंक ने आंसर किया इसमें समिट में कि जो कार्ड है, कार्ड ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है, फिजिकल कार्ड भी अवेलेबल है। ठीक है, फिजिकल कार्ड आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस इनके अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं है, बट हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लाइक जो चार्जेस रहेंगे 1000 HKD पर मंथ चार्ज रहेगा उसका, 5000 ऑर्डर करने के लिए 5000 HKD। 5000 को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो वो आपके अराउंड 25,000 के करीब बन जाएंगे, 25,000 रुपये। तो ये थोड़ा सा इशू आ रहा है कि हाँ, अगर कार्ड हमने लेना है तो भाई कार्ड लेने के लिए भी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बाकी उसका मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस एनुअल मेंटेनेंस तो अलग है, मंथली चार्जेस ही 1000 HKD लगेंगे आपके। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूज भी करने के लिए मंगा लें, अगर चलने भी लगे, तो हमारे लिए वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा हमको लॉस ही होगा, इतनी अर्निंग नहीं होगी जितना उसके चार्जेस हमें पड़ जाएंगे। जो इसमें इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, वो उसके कार्ड से काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स भी वहां पे अवेल करते हैं। बाकी और भी इसमें क्वेश्चंस जो इन्होंने किए हैं वो सारे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, और आपने जहाँ से ये वेबिनार का लिंक ज्वाइन किया होगा वहां पर वीडियो का लिंक शेयर है, ऑलरेडी शेयर है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो को जाके। और साउथ बैंक की और भी आप वीडियोस देखना चाहें, लाइक जितनी भी अभी तक के इनके बॉन्ड्स आए हैं, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे ऑफिशियल चैनल पे हर कंट्री वाइज इन्होंने अपलोड की हुई है। लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है वीडियोस। हिंदी में देखना है हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में, सारी प्रेजेंटेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखो, सो ऑफिशियल चैनल पे आप विजिट करके इनके डिटेल्स को सारी चेक कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे आप देखना चाहें, बिजनेस विद साउथ बैंक, ठीक है, हिंदी प्रेजेंटेशन, अगर मैं ये दिखाऊं आपको तो यहाँ पे हिंदी में लैंग्वेज एक ही Once है, इसमें everything's इन्होंने कन्वर्ट किया perfectly हुआ है। organized, I'll start working on my thesis. Grammarly will शाओ बैंक एक सार्वभौमिक प्रौद्योगिकी संचालित बैंक है जो दुनिया भर में दुरुस्त ग्राहक सेवा पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
ये 10 साल तक के लिए 9% से 16.5% प्रति वर्ष की ब्याज दरों पर ऋण सेवाएं प्रदान करता है। जमा राशि पर 1 से 10 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 11.5% दर पर ब्याज प्रदान करता है। साप्ताहिक ब्याज भुगतान के साथ 3 साल की कालावधि के बॉन्ड की बिक्री करता है और आपको अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग करियर बनाने के लिए एक बिजनेस नेटवर्क प्रदान करता है। शाओ बैंक एक सार्वभौमिक प्रौद्योगिकी संचालित बैंक है जो दुनिया भर में दुरुस्त ग्राहक सेवा पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ये 10 साल तक के लिए 9% से 16.5% प्रति वर्ष की ब्याज दरों पर ऋण सेवाएं प्रदान करता है। जमा राशि पर 1 से 10 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 11.5% दर पर ब्याज प्रदान करता है। साप्ताहिक ब्याज भुगतान के साथ 3 साल की कालावधि के बॉन्ड की बिक्री करता है और आपको अपना ये हिंदी वीडियोस भी आप यहाँ पे जाके इनके चैनल पे जाकर कर सकते हैं। बाकी अभी देखो आज फेस्टिवल सीजन की वजह से बहुत कम लोग क्या कुछ आए ही नहीं। मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे केवी सिंह कृष्णा कृष्णा सो मिस्टर केवी सिंह ही है हमारे पास हमारे साथ। ये मैं लिंक आप अपने वैसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सो केवी सिंह सर आप अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए क्योंकि मैं अपनी मीटिंग अभी क्लोज करने वाला हूँ थोड़े टाइम में। आज की मीटिंग में लोग आ नहीं पाए ज्यादा और बैकग्राउंड नॉइस भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। 1 मिनट। चैट आया है। ओके कृष्णा जी ठीक है। अगर खुद का डिजिटल मार्केटिंग करियर बनाने के लिए एक बिजनेस नेटवर्क प्रदान करता है। हांगकांग में स्थित अपने मुख्यालय के साथ ग्लोबल फ्यूचर एंटरप्राइज ग्रुप कॉर्पोरेशन का हिस्सा होते हुए शाओ बैंक PRC में अनिवार्य जमा बीमा प्रणाली का सदस्य है। एक बॉन्ड क्या है और इससे क्या लाभ हो सकते हैं? कई निवेशकों के लिए ये एक रहस्य रहा है। बॉन्ड एक निवेशक द्वारा किसी संगठन या राज्य को प्रदान किया गया ऋण है। शाओ बैंक बॉन्ड जारी करता है। प्रतिभूतियों को बेचकर शाओ निवेशकों से ऋण लेता है और बदले में ये ऋण पर एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करता है और 3 साल के भीतर बॉन्ड के नामात्र मूल्य को चुकाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप आज एक बॉन्ड धारक बन जाते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर आपके शाओ बैंक कार्ड में आपकी पहली आय जमा हो जाएगी। फिर हर हफ्ते इस आय को 3 साल तक आपके कार्ड बैलेंस में जमा किया जाएगा जब तक कि नामात्र मूल्य का पूर्ण पुनर्भुगतान न हो जाए। प्रत्येक बॉन्ड श्रृंखला में एक अलग यील्ड होता है, इसलिए नए बॉन्ड जारी होने की जानकारी के लिए शाओ बैंक की वेबसाइट देखते रहें। शाओ बैंक के साथ व्यापार ये आसान है, ये लाभदायक है और ये विश्वसनीय है। अपने करियर का निर्माण करें। अपने दोस्तों, सोशल नेटवर्क अनुयायियों, फोरम और ब्लॉगों को बॉन्ड की सिफारिश करें और आपके द्वारा खरीदे गए हर बॉन्ड से लाभ पाएं। लाभ तुरंत जमा किए जाते हैं। वे आपके भागीदारों द्वारा खरीदे गए बॉन्ड के योग का प्रतिशत होते हैं। बिजनेस नेटवर्क 10 स्तरों पर आय उत्पन्न करता है। स्तर 1 पर 7%, स्तर 2 पर 3%, स्तर 3 पर 2.5%, स्तर 4 पर 2%, स्तर 5 पर 1.5%, स्तर 6 पर 1%, स्तर 7 पर 1%, स्तर 8 पर 1%, स्तर 9 पर 0.5%, स्तर 10 पर 0.5%। पारदर्शी विपणन प्रणाली आपकी बिक्री के 20% का सक्रिय शाओ बैंक भागीदारों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिजिटल बैंकिंग में अपने भागीदारों और उनके आमंत्रित दोस्तों द्वारा की गई खरीदारी पर नजर रखें। लाभ स्वयंचालित रूप से आपके कार्ड में जमा हो जाते हैं। लेकिन यही नहीं, अपने बिजनेस नेटवर्क का निर्माण शाओ बैंक के सक्रिय भागीदार के रूप में करके आपको अतिरिक्त पुरस्कार टोकन भी प्राप्त होंगे। आप हांगकांग डॉलर 1 से 12 टोकन की दर से अपने भागीदार की बॉन्ड खरीद से 10 स्तरों पर टोकन में 20% अर्जित करेंगे, जो स्वयंचालित रूप से डिजिटल बैंकिंग में आपके टी बैलेंस में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा आप उपहार खरीदकर टोकन को वास्तविक कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। सामान्य HKD 4 से 40, दुर्लभ HKD 800 से 2400, रहस्यमय HKD 2400 से 4800,
प्रसिद्ध HKD 6000 से 12000, अमर HKD 12000 से 36000। टोकन जमा करें और शाओ मार्केट प्लेस पर उनके साथ उपहार खरीदें। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। खाली आपको ऐप डाउनलोड करना है और बटन दबाना है बाय। तो ये सिंपल आपके सामने जस्ट 3 मिनट में पूरा प्लान जो है इन्होंने वीडियो में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो तो अभी मैं यहाँ पे ना आपके साथ अभी आपके साथ मैं यहाँ पे बॉन्ड डिटेल्स भी शेयर कर देता हूँ। लाइक बॉन्ड कैसे आप परचेज करेंगे और बॉन्ड्स के क्या फायदे होते हैं। हेलो मिस्टर शुभम राय, वेलकम टू द वेबिनार। सो देखो यहाँ पे 4 टाइप के बॉन्ड्स हैं आपके सामने। इन बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है? इन बॉन्ड्स का सिंपल से यही मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट आप फिल करेंगे, वन टाइम फीस। अब आप एक बार में चाहे 100 बॉन्ड खरीद लें चाहे 1000 खरीद लें, नो लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। बट मिनिमम जो बॉन्ड साइज है वो 10 बॉन्ड्स की है। अगर आप ये 0.45% वाले बॉन्ड को परचेज करना चाहते हैं तो इसमें अगर हम यूएसडीटी में देखें तो यूएसडीटी में इसका क्या प्राइस रहता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहती है वो 10,136 यूएसडीटी की, ठीक है। अगर आप डबल बी वाले बॉन्ड को परचेज करते हैं जिसमें आपको रिटर्न, डेली रिटर्न जो मिलेगी 0.4%, इसका रेट है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेट मैं बता रहा हूँ 50.68, ठीक है। तो ये दो मेन इनके बॉन्ड्स हैं। इसके बाद अगर आप दो और बाकी जो 1 साल वाले देखें, अभी जो रिसेंटली आया कुछ दिन पहले, तो इसमें मेच्योरिटी आपको 1 साल में मिल जाती है। बाकी में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेच्योरिटी 3 साल में है, बट यहाँ पे आपको मेच्योरिटी जो है वो 1 साल में मिल जाती है। 1 साल में भी काफी अच्छा रिटर्न आपको मिलता है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट लिमिट के साथ। लाइक अगर आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 10 बॉन्ड एक टाइम पे लेना चाहते हैं, तो 1013.6 यूएसडीटी के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो रिटर्न मिलेगी वो 15,840 एचकेडी जो रिटर्न है, आपको एक काफी अच्छी रिटर्न यहाँ पे मिल जाती है, 0.5% पर डे की रिटर्न। अब इसी के साथ एक और अगर आप देखें 0.65% की रिटर्न, तो ये भी एक बहुत अच्छा रिटर्न बन रहा है आपके लिए। बट इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है? 5068 यूएसडीटी। तो मिनिमम आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद आपको कितना मिलेगा अगर हम इसको सिर्फ एचकेडी में देखें, रुपीज वगैरह साइड में रख के एचकेडी को देखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 40,000 एचकेडी अगर लगाते हैं तो आपको 1 साल में ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा एचकेडी रिसीव होगा, ठीक है। 10 मतलब यहाँ पे 12 महीने में, 1 साल में 40,000 एचकेडी का आपको 93,600 एचकेडी मिल जाएगा। और यही अगर हम इसको देखें एचकेडी में, यहाँ पे देखें तो 8,000 एचकेडी के बदले आपको कितना मिल रहा है? 15,840 एचकेडी। अगर बाकियों में देखें जो 3-3 साल के मेच्योरिटी के साथ है, तो अगर आप 400 एचकेडी लगाते हैं, ठीक है, एक एचकेडी की जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एचकेडी इज इक्वल्स टू 0.13 यूएसडीटी और इंडियन रुपीज में 10 रुपए 11 रुपए के अराउंड पड़ता है। तो 400 पे आपको 3 साल में कितना मिल रहा है? 1728। फिर इसी के साथ अगर डबल ए वाला आप देखें तो इसमें 80,000 एचकेडी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगी वो 3,88,800 एचकेडी की मिलेगी। तो ये काफी अच्छी रिटर्न बन जाती है कि बैंक के प्रोस्पेक्टिव पे अगर हम देखें ना, तो काफी अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं जस्ट ऑन योर सिंपल इन्वेस्टमेंट। अब इसी के बाद देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट के बाद आपको बताऊं प्रूफ क्या रहेगा। कई लोगों ने ये पूछा कि प्रूफ क्या रहता है अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उसका क्या प्रूफ रहता है? तो प्रूफ यहाँ पे एक आपको बॉन्ड मिल जाता है, देन उसके साथ साथ एक बॉन्ड एग्रीमेंट भी मिल जाता है। तो आप अपने बॉन्ड एग्रीमेंट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। मैंने 3 बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं इसमें। तो ये बॉन्ड एग्रीमेंट है, शाओ लिमिटेड एज एन इश्यूर ऑफ बॉन्ड्स एज वेल एज सतीश चंद्र एज अ बॉन्ड होल्डर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है
कि इन्होंने पूरा प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कौन सा बॉन्ड परचेज किया हुआ है और कितना जो एग्रीमेंट का ये जो मेरा पैसा इसमें लगा है, कितने मैंने पैसे लगाए थे एचकेडी का, वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन रहती है, किस टाइम से कितना चलना है वो भी सारा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पहले से। ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रहता है ये आपके लिए। अगर इन फ्यूचर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो आप इस अपने एग्रीमेंट को दिखा के क्लेम ले सकते हैं, जो कि हर कंपनी कुछ ना कुछ वे से लोगों को अपना एक मतलब सिक्योर फील कराने के लिए ऐसे एग्रीमेंट्स देती ही है। और जहाँ पे एग्रीमेंट्स नहीं होते वहां पे कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो बात अलग है, कई लोगों के जो एग्रीमेंट्स होते हैं बाद में फेल हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते। बट यहाँ पे आप इस पे पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, पूरी ए टू जेड डिटेल यहाँ पे मेंशन होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इतना बड़ा जो ये डिटेल लिख के इन्होंने दिया है ना, इसको मैं आपको अगली जो मीटिंग होगी उसमें सारा डिटेल में यही समझाऊंगा, स्पेशली उस टाइम। अभी देखो आज लोग ज्यादा नहीं है तो आज समझाने का इतना फायदा नहीं होगा। बट फिलहाल जो आप ये देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट एवरी डे और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट, ये सब सब कुछ दिया हुआ है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज देखते हैं। सर्टिफिकेट तो हमने देखा नहीं अभी, ये वाला भी ओपन नहीं हो रहा इसमें, जो मैंने अपनी वीडियोस में भी बैकग्राउंड में लगा के रखा हुआ होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी वीडियोस में जो स्पेशली बॉन्ड्स जो प्रिंट करके लगा के The world financial markets today are showing signs of repeat. लॉजिकल शर्मा। तो दोस्तों तो ये आप जो यहाँ पे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये इनका सर्टिफिकेट होता है कि आपने बॉन्ड लिया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट है। और इसी के साथ साथ एग्रीमेंट भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि एग्रीमेंट में भी सब कुछ मेंशन होता है, और सर्टिफिकेट एक अलग से आपके पास होता है कि हाँ भी आपने ये चीज ली है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी लगी हुई है। अभी यहाँ पे लैपटॉप में मेरे हो नहीं रहा, आप फोन से करेंगे तो हो जाएगा, फोन से हमेशा हो जाता है, थोड़ा इंटरनेट इश्यूज की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। बाकी मैं अपने डाउनलोड फाइल्स में देखता हूँ, हो सकता है मेरे पास पड़ा हो। नहीं है तो अभी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो बॉन्ड्स परचेज किए हैं उनकी डिटेल्स ये हैं। अप्रोक्स मैंने भी अपने 35,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं बॉन्ड्स में, शॉपिंग में। और ये आज आज से नहीं मैं कर रहा हूँ, 3 अप्रैल से मैं कर रहा हूँ। 3 अप्रैल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 3 अप्रैल को मैंने अपने पहले एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट डाली थी, फिर 4 अप्रैल को एक बॉन्ड लिया था, फिर 5 जुलाई को मैंने बॉन्ड लिया था। और ये सिर्फ मेरी आईडी है, इसके अलावा मैंने डाउनलाइन में अपने जो फादर की आईडी लगा रखी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट की हुई है थोड़ी बहुत। तो ये आपके सामने, अगर मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैंने खुद कुछ इसमें नहीं लगाया। सबसे पहले मैंने अपने पैसों को यहाँ पे रिस्क मान के इन्वेस्ट किया था, और उन पैसों पे जो रिटर्न्स आई, जो प्रॉफिट आया, उनको क्रॉस चेक किया, सारा कुछ देख के फिर अब जाके मैं लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ना रिटर्न्स कम है, नो डाउट। इसके मतलब इससे भी 10 गुना ज्यादा आपको मार्केट में रिटर्न देने वाली कंपनीज हैं, बट बैंक नहीं है कोई भी। बैंक तो एक और बस यही इकलौता शाओ बैंक है जहाँ पे आपको इतनी अच्छी रिटर्न मिल रही है। बैंक कोई भी आपको इतनी रिटर्न नहीं देने वाला। कंपनीज अलग है इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक टाइटन भी मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है सारा। टाइटन में क्या है कि टाइटन में से 5x आपको रिटर्न मिलती है, उसके साथ साथ अलग अलग टाइप के प्रॉफिट्स मिलते हैं, रिटर्न्स मिलती हैं अलग अलग टाइप की। बट वो इतना सिक्योर नहीं मानता मैं, ठीक है। सब कुछ अपनी जगह पे है, ठीक है, बट सिक्योरनेस अपनी अपनी जगह पे, गारंटी किसी भी चीज में नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सिक्योर है। अब आप
डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज अगर अच्छे से चल रही है तो हम एक ही चीज पे डिपेंड रहेंगे। हमको अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करके अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। मान लो शाओ बैंक ही बंद हो जाए, टाइटन तो है मेरे पास, या टाइटन बंद हो जाए, शाओ बैंक तो है मेरे पास। अब ये ऐसा नहीं कि मैं इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड रहूंगा, इसके अलावा मैं और भी बहुत चीजें करता हूँ। म्यूचुअल फंड की हुई है मैंने, ठीक है, एसआईपी की हुई है, और शेयर्स लिए हुए हैं, टोकन्स खरीदे हुए हैं, कॉइन्स खरीदे हुए हैं। तो अलग अलग चीजों में डाइवर्सिफिकेशन हर कोई करता है और मैं भी करता हूँ। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। So this is all about today's Shao webinar. Now I'm going to close this webinar क्योंकि आज वेबिनार में लोग नहीं थे तो ज़्यादा लंबा चला के कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट वेबिनार जो होगा हर मंडे यहाँ पे मैं वेबिनार करता हूँ। इन केस अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट काम में बिजी ना हो तो वेबिनार होता है, वो कंपलसरी है। तो आप हर मंडे यहाँ इस वेबिनार में अपनी टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप खुद स्टार्ट करते हैं देन आपके स्टार्ट करने के बाद आपकी टीम को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो यहाँ पे मेरे पे ही होगी, ठीक है। तो आपकी टीम को भी हम वेबिनार्स के थ्रू करेंगे। अभी जो है अकेले मेरे लिए ना थोड़ा सा टफ रहता है, मुझे भी मेरे साथ ना कुछ लोग चाहिए जो एज ए टीम मेरे साथ काम करें, मुझे मिल नहीं रहे। अब वो टीम के साथ काम करने में मजा तब आता है जब लोग अच्छे मिलेंगे। लोग तो हैं जो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन वो सिर्फ पैसा ढूंढ रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी नहीं पसंद। उनको ये है कि भाई एक दिन स्टार्ट किया तो एक ही दिन में पैसे आने स्टार्ट हो जाए। आएंगे एक दिन में, यहाँ पे भी आते हैं, लेकिन उतने नहीं आते जितना आप लोग जितने भी ये पॉन्जी स्कीम्स में कमा सकते हैं। बट ये है कि पॉन्जी स्कीम्स लॉन्ग टर्म नहीं चलती, लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। अच्छी चीजें रिकमेंड करो, अच्छी चीजों से खुद भी प्रॉफिट लो, थोड़ा कम लो और लोगों को भी दिलवाओ, ताकि लॉन्ग टर्म चले और आपकी रेपुटेशन भी बनी रहे। So this is all about today's webinar. Now I'm going to stop my screen and ये आज क्लोज करते हैं यहाँ पे। बाकी कृष्णा जी थैंक्स आपने आज का वेबिनार शुरू से लेके अभी तक देखा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट मंडे, और इन केस आपको कोई भी हेल्प सपोर्ट की नीड है या कोई भी डाउट है तो मैंने आपको यहाँ पे चैट में अपना नंबर शेयर कर दिया है, ठीक है। ये नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ 8528004771। तो ये नंबर नोट करके आप कॉल करके पर्सनली ये प्लान समझ सकते हैं। और होपफुली के आपको ये समझ आ जाए तो नेक्स्ट मीटिंग्स जो है हम लोग साथ में करें, आपकी भी टीम हो मेरी भी टीम हो, तो थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पे करें। बहुत जल्दी ब्रांच भी ओपन हो सकती है, शायद वो दूसरी टीम के थ्रू हो, लेकिन हो जाएगी क्योंकि मेरी टीम अभी इसमें इतनी बड़ी नहीं है और मैंने यहाँ पे इतना कुछ किया नहीं है। चलिए क्लोज करते हैं, थैंक यू।